انڈیا نے اپنی جیت کو ڈیڈیکیٹ کیا اسرائیل کے نام. انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اس جنگ میں. کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جی پہلی بات تو یہ ہے ہمارا پاکستان اگر ہار بھی گیا نا تو الحمدللہ ہمارے لیے وہ جیتا ہوا ہے. ہمارے لیے وہ الحمدللہ ہمارے وطن کے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, صحیح ہے, وہ ہمارے لیے جیتا ہوا ہے, صحیح ہے. ان کی ادھر ہار نہیں ہوئی, ہماری نظر سے ان کی جیت ہوئی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ کیا کس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں جیت ہوئی ہے؟ یعنی ہار کے بھی جیت ہوئی ہے. ایک یہ ہوتا ہے لڑے ہوتے مطلب پراپر مقابلہ کیا تھا, پھر ہم کہتے ہیں کہ یار بڑی اچھی گیم کی ہے, ہماری طرف سے وہ جیتا ہوا ہے. 191 پہ آل ٹیم آؤٹ ہوگی اور آپ کہہ رہے ہیں جیت ہوئی ہے. ہر بندے کی, میں ادھر کاروبار کر رہا ہوں نا, صحیح ہے, مجھے پتا ہے بھی میں اس میں کیا ہونا ہے. میں نے مطمئن ہو کے چیزیں بیچنی ہے نا, ٹھیک ہے, نقصان میں تو نہیں نا بیچوں گا. وہ جو میچ انہوں نے کھیلا ہے نا اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے, یہ اللہ کی مرضی. اگر ہار بھی گئے نا کوئی بات نہیں, جیتے بھی تو ہے نا, جیتا بھی ہے ہارتا بھی, یہ مقدر کا ہوتا ہے, صحیح ہے نا. یہ نہیں بھی ہار گیا تو وہ برے ہو گئے, صحیح ہے, وہ جیتا ہے تو وہ بلے بلے ان کی ہو جاتی ہے. رضوان زندہ آباد, بابر زندہ آباد, نسیم شاہ زندہ آباد, چاچا زندہ آباد, یہ نہیں ہوتا, صحیح ہے نا. وہ ہارا ہے کوئی بات نہیں, اگلا میچ آپ کو لگتا ہے جیت جائیں گے؟ الحمدللہ جیتے گا. یہ بھی ہماری کی پوری کوشش, انہوں نے جیتنے کی پوری کوشش کی تھی, صحیح ہے. وہ یہ ذہن سے تھوڑی جاتے بھی یار ہم نے ہارنا ہی ہے, وہ یہ ذہن سے نہیں جاتے. میں کاروبار کرتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یار میں نے روزی کمانی ہے, میں نیت سے کام کروں گا. میں نے روزی کمانی ہے, میں نیت سے کام کروں گا تو میری روزی میں اضافہ ہوگا, ٹھیک ہے. اگر میں نیت سے نہیں کروں گا تو ظاہر سی بات ہے جس طرح کی, ہاں جس طرح کی نیت. تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ٹیم کی نیت نہیں تھی, پھر تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں نیت تھی ان کی, الحمدللہ نیت تھی. ٹیم کی پوری نیت ہوتی ہے, جیتنے کی پوری نیت ہوتی ہے. کوشش پوری کی انہوں نے, ٹھیک ہے, کوشش پوری بالکل کی انہوں نے, صحیح ہے. پھر بھی ہار گئے, جی. لیکن جو بات ابھی اسرائیل اور حماس کی ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ انڈیا جیسا کنٹری, بڑی اکانومی جو ان سے اسرائیل کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اپنی وکٹری, کیا کہنا چاہیں گے؟ اور پاکستان جو ان سے وہ فلسطین یا حماس کے ساتھ کھڑا ہے, فرق کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا الحمدللہ ہمارے جو لیڈر ہے نا, یہ انہیں سوچنا چاہیے. میرے بس میں ہونا تو الحمدللہ میں جان لٹا دوں ان پہ, فلسطینیوں پہ جان لٹا دوں. ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہمارے جو مسلمان ہیں نا ان کو چاہیے اکٹھا ہو کے ان کی مدد کرنی چاہیے, صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں بس میں ہو, میں ایک ویسے اگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں. آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ مطلب جائیں ہیلپ کریں, مجھے دیں, میرا ویزا لگوا دیں, میں ابھی چلے جاتا ہوں, میں ابھی چلے جاتا ہوں. پکی بات ہے, لوہے پہ لیک ہے, مجھے اجازت ابھی دیں, مجھے دیں, میرا ویزا لگوا دیں, الحمدللہ جان بھی دے دوں گا ادھر. اس جان کا کیا فائدہ جب ہمارے مسلمان کے بھائی کے کام ہی نہیں آنا, پھر اس جان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے تو ادھر پاکستان میں بھی بڑے مسلمان بے روزگاری سے مار رہے ہیں, انہوں نے میچ کر دیا نا, ہاں ان کے نام ہے ہمارا میچ, انڈیا نے جو جیتا ہے انہوں نے کہا جی میں ان پہ قربان کر دیتا ہوں میچ, میری جو اوقات ہے نا جتنی, میں اپنی جان بھی ان پہ قربان کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, جو میرے بس میں ہے. ہماری طرف سے بھی جو محمد رضوان ہے, انہوں نے جو سینچری کی تھی لاسٹ میچ میں, انہوں نے یہ بولا کہ یہ جو میں اپنی سینچری ہے نا, یہ میں اپنی جو پرفارمنس ہے یہ ڈیڈیکیٹ, انہوں نے بھی تو یہ بات کی کہ میں یہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں فلسطین کو یا جو غزہ کو. وہ تو انہیں چاہیے تھا, کوشش پوری کرنی چاہیے, ہر مسلمان کو چاہیے. یہ نہیں بھی خالی رضوان ہو گیا, بابر ہو گئے, ان کو نہیں, ان پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, یہ ایک دو بندے کا کام تھوڑی نا. یہ سارے مسلمان اگر اکٹھے ہو کے جائیں نا, ان کی مدد کریں. اگر آج ہم کسی کی کریں گے نا, کل کو ہماری بھی کوئی کرے گا. یہ اللہ ہمارے پہ بھی ٹائم آ سکتا ہے, صحیح ہے نا. اگر کسی کے کام آؤ گے نا, کل کو آپ کے بھی کوئی کام آئے گا. ٹھیک ہے, ہمارے صرف یہاں پہ کھڑے ہو کے جذباتی اسٹیٹمنٹ دینا, بیان کرنا, نعرے بازی کرنا, اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ہماری جو اسٹیٹمنٹ کی کوئی فرق ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں جی, کچھ نہیں فرق پڑے گا, ہمارے جذباتی ہے. ہم مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے. مسلمانوں کی اس ٹائم غیرت مر گئی ہے, ہمارا بھائی وہاں مر رہا ہے, کسی کی جرات نہیں ہے کہ ہم نکلے یہاں پہ. ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں, یہاں صرف باتیں کریں گے اور ٹائم پورا ہو جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے, جنگ ہے, جنگ میں ہر ایک کنٹری کی مرضی ہے, وہ جس کو مرضی. وہ ہے تو مسلمان ہے نا, مسلمان بھائی ہے ہمارا. ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر ایک کو چاہیے کہ وہاں ان کے لیے کچھ بولے. مسلمان نہ مرے, نان مسلم چاہے مر جائے. نہیں, نان مسلم بھی نہ مرے, لیکن ان کا تو حق ہے نا. ان کے قبضے میں ہمارا مسجد اقصیٰ ہی, وہاں غزہ میں آج بمباری ہو رہی ہے. کوئی بول رہا ہے انگریزوں کو اسرائیل پر حملہ ہوا. آپ کو پتا ہے کہ حماس نے پہلے بمباری نہیں, جہاں پہلے اسرائیل پہ حملہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, جب اسرائیل کے حق میں سب بولے ہیں, فلسطین کے حق میں کیوں نہیں بولے؟ اکٹھے ہوئے, امریکہ آیا نا. نہیں, پہل آپ کیوں کی ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے وہ کتنا ظلم کر رہا ہے فلسطین پہ.
ठीक हो कितना गया। तो वो नहीं, आप ये फलस्तीन भी- बोलेगा नहीं उसके हम खिलाफ, साथ ये वो नहीं कह आज से सकते। नहीं, आज से 50 साल पहले उन पे जुल्म हो रहा है। मैं ये आपको क्लियर करता चलूंगा, दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं मोस्टली वो फलस्तीन के साथ खड़े तो नहीं हैं। नहीं खड़े, ऐसे थोड़ी खड़े होने, जैसे पाकिस्तान नहीं खड़ा। अमेरिका ने बैरी बेड़ा भेजा, इसे सऊदी को चाहिए था भेजता, पाकिस्तान को चाहिए था अपनी वही भेजता। हमारा तो क्यों मस्जिद नहीं है, भेजते? ये इनकी गैरत मर गई है सब मुसलमानों की, हमारे समेत। ठीक है, इंडिया ने इसराइल के नाम अपनी जीत की है, ये वो इंडिया ने की है, इंडिया ने की है, अमेरिका देखे, जो है जर्मनी देखे, फ्रांस देखे, सब उसके साथ इसराइल के। हम क्यों नहीं फलस्तीन के साथ जाते, क्यों नहीं आगे जा रहे? अगर इसी तरीके से वैसे तो रैलियां निकली हैं जुम्मे वाले दिन, वो आपको रैलियों पता है। से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा नारों से कुछ नहीं बनता जब तक आम बंदे को तकलीफ नहीं होगी। इसका भाई उधर है ना, इसको तकलीफ है, सही है ना। ये नहीं भी गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है, ठीक है। गैर मुस्लिम के बच्चे नहीं है, हाँ। उसके बच्चे नहीं है। हम मुसलमान के बच्चे हैं तो गैर मुस्लिम के बच्चे नहीं है है। ना। जुल्म ही है, बेशक इसका भाई है या मेरा भाई है, ये हमारे मुसलमान को चाहिए। हमें तो फिर देखे, हमें तो ये बात करनी चाहिए ना। इसराइल की एक औरत को पकड़ा, उन्होंने बॉर्डर तक उसको पहुंचाया। क्या ये बच्चे नहीं है, ये माए नहीं हमारी? नहीं, उधर से कितने इसराइल की कितनी औरतों किसी को निशाना नहीं बनाया, इन्होंने तो हमारी औरतों, बहनों, Hostage भाइयों, किया गया बच्चों बच्चों को को बनाया खबर के है। मुताबिक। देखे आप, देखे कितने हॉस्पिटल पड़े हैं, हमारा रोना निकल जाता, खुदा की कसम हमारा रोना निकल जाता है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी दर्द है, सुख है। ठीक है। तो इसलिए कि मेहरबानी कहना? करें, नहीं। हम अपने हुक्मरानों, खुदा के लिए, इनके लिए सब मुसलमान इकट्ठे हो जाओ और है। इनकी मदद करो। ठीक है, लेकिन इस तरीके से जंग आपको नहीं लगता बढ़ जाएगी? कोई सुलह नहीं, सफाई की तरफ भी सुलह जाना की- सुलह चाहिए? होनी ऐसे चाहिए, तो ये पूरी लेकिन- दुनिया में जंग फैल जाएगी। ये वो तो सारे- ठीक है, सुलह अमरीका को करानी चाहिए थी ना। लेकिन एक तरफ हाव नहीं है। के लिए ना अमन के लिए जंग जरूरी है, अमन के लिए जंग जरूरी जंग है। जरूरी है। ये यूनिवर्सिटी में किताबों में पढ़ाया जाता है कि अमन के लिए ना जो जंग जरूरी है, जहाँ पे अमन ना हो वहाँ पे जंग लाजमी है। ठीक है, अच्छा जंग के लिए तैयार रहना जरूरी है। ये जंग बताया जो है गया, ना, ये नहीं ये कहा कि मुश्किल हम खुद बना रहे हैं। अच्छा। जंग मुश्किल नहीं है, सही है, ये मुश्किल बना रहे हैं, सही है ना। दो ही होते हैं, एक ही होता है, एक को कोई भी पी सकता है, दो को कोई नहीं पी सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो अकेले वहाँ पे खड़े हैं? उनके साथ ईरान, उनके साथ गल्फ कंट्री, सऊदीया की अगर बात करें, इसके अलावा ये कंट्रीज नहीं उनके साथ खड़े? फलस्तीन के साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। हमें तो यहाँ पे ये जो बताया जाता है अकेले हैं, आप नहीं खड़े? मैं खड़ा हूँ। हम भी खड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा हम भी हूँ। खड़े हैं। तो फिर आप ना हक के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है। आप ना हक के लिए जो लड़ते खड़ा है, हमारी फौज नहीं है ना हमारे साथ, अच्छा हम फौज नहीं साथ दे रही ना। ठीक फौज है। को चाहिए फौज साथ दे हमारा, फौज अवाम तो सब खड़ी है, ठीक है। अवाम आवाज भी उठा रही है, अवाम तो खड़ी है, फौज साथ नहीं दे रही। फौज को छोड़े, फौज साथ ना दे, ये हमारे मुसलमान इकट्ठे हुए, फौज बाद में है। फौज दे या ना दे, हमारी अवाम इकट्ठी हो, अवाम इकट्ठी हो के जाए। कोई करने वाला। लीड तो होना, कोई हौसला अफजाई करने वाला तो होना। लेकिन ये है कि इलीगल जोन्स है, मतलब हम वैसे तो डंकी लगा के कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। इधर हम कहते हैं कोई हमें लीड करेगा तो फिर जाएंगे। नहीं, जो मुजाहिद है, जो जिसमें जाना मुजाहिद है वो जज्बा, जाए। आज जिसका जज्बा है ना वो जा रहा है। हाँ। हमारे पास तो हथियार आपने नहीं जज्बा है, नहीं- हमारे पास हथियार ही नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई हमें दे ना। इंशाल्लाह कोई हथियार देगा, कनेक्शन को दे। 10 दुश्मन मारूंगा तो फिर मरूंगा इंशाल्लाह, 10 दुश्मन मार के मरूंगा ठीक है, इंशाल्लाह। लेकिन पीस की बात नहीं आपको लगता कि हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा मैसेज जाएगा? पीस लाजमी है, जो बात है वो टेबल पे होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये देखें ना, ये बात समझ लेकिन में जो हालात फलस्तीन पे हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, कई सालों से हो रहे हैं, वो नजर नहीं आ, वो क्यों नहीं खत्म हो रहे जुल्म? आप अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई 10 जो सा दुश्मनों को मारूंगा, फिर जो सा वो बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हमारा जज्बा है, हम मुसलमान है, जहाद हम पे फर्ज है, हमारा मुसलमान भाई मर रहा है। अगर हम किसी के कुफार को 10 मारे तो एक मर जाए तो कोई बात नहीं, कुफार को मारना है। ठीक है, एक और चीज है, जंग में हार जीत होती है। हार जीत होती है, ये तो नहीं बिल्कुल। कह सकते कि उसने बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो दूसरा कह के भाई ये इसने जुल्म कर दिया, वो तो हार हो ये देखें ना, अब आप देखेंगे इसराइल में इस टाइम फलस्तीन में क्या हालात हैं। ठीक है। ये अस्पताल बड़े बड़े हैं। पीस की बात ये है कि अमेरिका को चाहिए, रियासत को चाहिए कि इनको चाहिए कि जाएं इनके नहीं। पास, इनको कहें भाई बैठे बंद करें जंग। क्यों अमेरिका नहीं करा तो सकता अमेरिका जंग? फिर साथ अगर ये कहे कि जिसने स्टार्ट किया हम उसे सजा देंगे, तो फिर भी हम को कहेंगे कि अमेरिका ने ठीक जो है, जुल्म अमेरिका किया। ये अमेरिका को जो 25 साल जुल्म हो रहा है फलस्तीन पे, उसका भी हिसाब ले उनसे, इसराइल से। ठीक है। वो क्यों नहीं बोलता? एक दिन में आपको पता कितने मिसाइल दागे गए वहाँ? तो वो यहाँ जो फलस्तीन का बेड़ा गर्क हो गया, खत्म हो गया, सफा 80 से मिटा दिया गदा, उसका कौन हिसाब ठीक देगा? है, कोई बेहतरी की तरफ जाने के आने वाले टाइम पे क्या बेहतरी- समझ रहे हैं? देखें, इस टाइम रशिया भी स्टेटमेंट दे रहा है, इस टाइम पे चाइना भी इवन स्टेटमेंट दे रहा है, दुनिया के बड़े बड़े कंट्री में जो उनसे आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये हमें किस साइड चाहिए पे कि जा रहे ये हैं? सब बड़ों को मिलकर बैठना तमाम चाहिए, countries इन को। तमाम कंट्रीज को। जैसे ये जो अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की बात सुनी जाती है, इस तरह ये
अरे हमारे मुसलमान ममालिक की भी सुने, OIC की। OIC की भी सुने, और उसी टाइम उनको ऑर्डर हो गए 1-2 दिन में जंग बंद करें तो फौरन होनी चाहिए। जंग, मैं तो ये कहता हूँ जंग बंद होनी जंग चाहिए, मेरा मसाइल अपना का हल नहीं है। अच्छा, कितनी भी जंग लड़ ले, कोई भी हारे कोई भी जीते, क्या उससे मसला हल हो जाएगा? ये बताइए। नहीं, मसला नहीं हल होता, मसला होता है बातचीत पे हल। लेकिन बातचीत तब होती है जब दोनों तरफ से रजामंदी हो। ऐसे ही। एक बड़ा एक चढ़ाई करता है दूसरे गरीब पे, वो उसकी कोई नहीं सुनता। ठीक अब है। जैसे फलस्तीन की कोई नहीं सुन रहा, अब इसराइल की हर कोई सुन रहा है। नहीं, एक साइड पे हम कह रहे हैं कोई नहीं सुन रहा, दूसरी साइड पे उन्होंने पहल भी की, जंग की। नहीं, ऐसे पहल तो नहीं, वो तो जुल्म के खिलाफ है। क्या? वो तो जुल्म अच्छा, वो जंग करेंगे, हम जंग भी कर रहे हैं ताकि हम अपने इस्लाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है। हमारे इस्लाम की बहुत जज्बा है। अच्छा। हम अपने जज्बे को यकीन करो, प्लस वो इसराइल के अमेरिका पे भी साथ उड़ा देंगे। अमेरिका के कहने पे तो हम यहाँ पे चल रहे हैं, आप कह रहे हैं अमेरिका का कहना छोड़ दो। ओसामा बिन लादेन को, आपको पता है, आपको पता है जी, पता है। ओसामा बिन लादेन को बिल्कुल यहाँ पता से है। उठा के ले ओसामा बिन लादेन गए, तो वहाँ पे जज्बा किधर था? अमेरिका को कहते भाई आपकी क्या जरूरत है, हम खुद सजा दें या जो भी करें। अमेरिका जो है ना हमारे सामने आए नहीं, हम जिहाद पे गए नहीं। जब इंशाल्लाह हम जिहाद पे जाएंगे ना, अपने इस्लाम के लिए लड़ेंगे, तो फिर अमेरिका को पता लगेगा यार कितना जज्बा है पाकिस्तानियों का। ठीक हो गया। हाँ। अब ना ये डंडे तलवार वाला ना दौर नहीं है। ये चीज, ठीक है, अगर ये दौर होता ना, हाँ। हम खुद किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती, ठीक हम है। खुद चले जाते। अब वो दौर नहीं रहा, अब टेक्नोलॉजी का दौर ये है। बात, यही बात है। अगर वो होता ना तलवार वाला दौर, डंडे तो आप खुद तलवार लेके हम चले। खुद चले जाते, किसी की ना सुनते। अब वो दौर नहीं रहा। हमारी फौज पाक फौज नहीं, की जज्बा तो होगा। जज्बा तो फुल है, जज्बा तो हर बच्चे से पूछो, बच्चे के साथ भी उसे पूछो ना, तो जज्बे के साथ तो आप मतलब इस तरीके से हो सकते हैं ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर ये देखो ना, जज्बे के साथ अगर हम इंडिया का बॉर्डर पार करें ना, वो भी हमें गोली मार दे। चीन पर हमला किया ना इंडिया ने, हाँ। क्यों किया? क्योंकि ये फलस्तीन के साथ नहीं, है। हमला नहीं, वो उनका आपस नहीं में नहीं, हमला हुआ है, ये रॉकेट डाले गए हैं, आपको नहीं पता? इंडिया ने रॉकेट फेंके हैं। नहीं जी, बिल्कुल चीन पर। क्योंकि वो कब की बात है? मुझे इसकी 3-4 दिन पहले की बात है, ये आज 1-2 दिन की नहीं है। वैसे ऐसा हुआ नहीं मेरी खबर के मुताबिक, लेकिन हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपने कहाँ से खबर देखी कि इंडिया चैनल एक है, वो उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उस हाँ। पर अक्सर शो ये होता है, कि भाई इंडिया ने चाइना पे मिसाइल फेंक दी। मिसाइल फेंक दिए। ठीक हो गया। इसलिए फेंके क्योंकि वो रूस ने डाला ना हमला, वो अमेरिका पर। ठीक है। वो जो जहाज भेजा था इमदाद के लिए, अच्छा। वो रूस ने काबू कर लिया है। ठीक हो गया। लेकिन अब के ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान साथ देता ना उनका, लेकिन पाकिस्तान साथ दे रहा, ये नहीं कि नहीं दे रहा, लेकिन ठीक है। खुफिया तरीके से। खुफिया तरीके से खुल के सामने। अच्छा, खुल के क्यों नहीं सामने आ नहीं, गया? इनको हमारे हुक्मरानी की दोहरी पॉलिसी है ना, ये उसको भी खुश करते हैं, उसको भी, इनको चाहिए खुल के सामने आए। ना इंडिया तो खुल के साथ दे रहा है, इंडिया वो आया तो ना, मतलब खुल के तो साथ दे वही रहा है तो ना मैं इसराइल कह रहा कि ये हमारे हुक्मरानों की दोहरी पॉलिसी है। इस खुल के पाकिस्तान के सामने आना चाहिए। हम इसराइल की, फलस्तीन की मदद के लिए हम आगे आते हैं। ठीक है। इनको साफ बयान देना चाहिए। मौत तो एक दिन मुकर्रर है, वो आनी है। किसी के खाने के लेने से कुछ नहीं चले, बनता। मैं यही कहूंगा कि भाई पीस की और मोहब्बत की बात करनी चाहिए। यहाँ और जो मजीद लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका।